So in the chapter of prescription, we were discussing about pharmaceutical calculations, and in our previous lecture I told you about two types of system for weight and measure, the imperial system and the metric system. And the imperial system is further divided into avoirdupois system and apothecary system. In avoirdupois system, pound is the standard unit of weight and measure, and in apothecary system, troy, it is also known as troy system, and grain is the standard unit in this system. लास्ट टाइम हमने ये कन्वर्शन टेबल भी डिस्कस किया था. 1 pound is equal to 16 ounce और 1 pound is equal to 7000 grains. One pound is equal to 16 ounce or 1 pound is equal to 7000 grains. Then 1 scruple is equal to 20 grains. 1 dram is equal to 60 grains. 1 ounce is equal to 480 grains. 1 pound is also equal to 12 ounces. So these are the conversions. ये जो दोनों सिस्टम्स हैं, avoirdupois एंड apothecary सिस्टम, दोनों सेम नहीं है, दोनों में यूनिट्स का डिफरेंस है. Then measurement of capacity in imperial system, gallon is the standard unit and 1 gallon is equal to 160 fluid ounce. 1 quart is 1/4 of gallon. 1/4 of gallon means 1/4 of 160 fluid ounces, and it is equal to this one. 1 quart is equal to 40 fluid ounce. Then 1 pint is 1/8 of gallon. So 1 pint is equal to 20 fluid ounce. Then 1 fluid ounce is equal to 480 minims, and 1 fluid dram is equal to 60 minims, and 1 minim is equal to 1 drop. 1 minim is equal to 1 drop. आपने इसमें से ये जरूर याद रखना, 1 क्वार्ट इज इक्वल टू 40 फ्लूइड आउंस एंड 1 पिंट इज इक्वल टू 20 फ्लूइड आउंस. देन मीट्रिक सिस्टम, जो करंट सिस्टम हम आजकल यूज कर रहे हैं, यू आर वेल अवेयर दैट इट इज मीट्रिक सिस्टम, एंड किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मीट्रिक सिस्टम. Then measurement of volume, liter is the standard unit and 1 liter is equal to 1000 milliliter.
Next is conversion table from higher unit to lower unit. 1 kilogram is equal to 1000 gram, 1 hectogram is equal to 100 gram, 1 decagram is equal to 10 gram, and 1 decigram is equal to 0.1 gram, 1 centigram is equal to 0.01 gram, 1 milligram is equal to 0.001 gram, or in reverse 1 gram is equal to 1000 milligram, and 1 gram is equal to 10 raised to the power 6 microgram. This one. Now conversion of domestic measures. 1 drop is equal to 1 minim, that is equal to, in metric system it is equal to 0.06 ml. 1 teaspoonful is 4 ml. 1 dessert spoonful is 8 ml, which is double of teaspoonful, and 1 tablespoonful is equal to 15 ml. It is almost double of dessert spoonful. 2 tablespoonful will be obviously 30 ml, and it is equal to 1 fluid ounce. जिसके साथ हम फ्लूइड वर्ड यूज करते हैं ना, इट मीन्स इट इज फॉर लिक्विड. अगर हम खाली आउंस वर्ड यूज करेंगे, इट मीन्स इट इज फॉर सॉलिड. 1 वाइन ग्लास फुल इज इक्वल टू 60 ml, and 1 tumbler full is equal to 240 ml. नेक्स्ट है calculate the quantity of dextrose required to prepare 1 fluid ounce of 10% solution. इसमें क्योंकि वर्ड फ्लूइड आउंस यूज किया है, इसका मतलब ये इंपीरियल सिस्टम है, ठीक है ना. तो इंपीरियल सिस्टम के लिए हमें अलग इक्वेशन यूज करनी है, हमें मीट्रिक सिस्टम नहीं लगाना इसमें, हमें सारी कैलकुलेशन इंपीरियल सिस्टम से ही करनी है. तो 1 फ्लूइड आउंस आपने बनाना है, 1 fluid ounce and 10% solution. तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है 4.375 grains in 1 fluid ounce is equal to 1% solution. जैसे हमारे मीट्रिक सिस्टम में 1 ग्राम in 100 ml is equal to 1% solution होता है, ठीक है ना. 1 ग्राम इन 100 ml इज इक्वल टू 1% सोल्यूशन. वैसे ही इंपीरियल सिस्टम में 4.375 ग्रेन्स इन 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 1% सोल्यूशन. अब हमें ये जो इक्वेशन है, दिस इज फॉर 1 फ्लूइड आउंस. 1 फ्लूइड आउंस हमें बनाना कितना है, 1 फ्लूइड आउंस ही बनाना है. इसका मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं करना हमें. यहां बनेगा कितना परसेंट, 1%. इट विल बी इक्वल टू 1% सोल्यूशन. लेकिन हमें बनाना कितना है, 10%. 10% बनाना है, तो हमें इसको जो क्वांटिटी है 4.375 जो क्वांटिटी है, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करेगा, 10 टाइम्स, तभी वो 10% बनेगा. जब हम 4.375 ग्रेन्स एक फ्लूइड आउंस में डाल रहे हैं तो 1% बन रहा है. जब हम इसकी 10 टाइम्स क्वांटिटी डालेंगे, 4.375 इंटू 10 ग्रेन्स इन 1 फ्लूइड आउंस, इट विल बी इक्वल टू 10% सोल्यूशन. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 43.75 ग्रेन्स. तो ग्रेन जो है कभी भी डेसिमल में नहीं होता है, तो हमने इसको राउंड फिगर करके आंसर कर दिया 44 ग्रेन. इसके बाद एक और डिस्कस करते हैं हम. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 pint of 1 in 600 solution. 1 pint of 1 in 600 solution. अब इसमें दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि पिंट क्या है और 1 in 600 क्या है. तो अभी मैंने पीछे कन्वर्शन टेबल किया था, उसमें था 1 पिंट इज इक्वल टू 20 फ्लूइड आउंस.
1 pint was equal to 20 fluid ounce. और 1 in 600 का मतलब है कि 1 part in 600 part, 1 part in 600 part. पिछले एग्जाम्पल में हमें परसेंटेज दी हुई थी 10%, इसमें परसेंटेज नहीं दी हुई, इसमें 1 in 600 दिया हुआ है. तो 1 in 600 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. तो इन परसेंटेज इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 100. 1 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये आंसर आ जाएगा 1/6%. अब आपको दोनों चीज़ें पता लग गई, वॉल्यूम भी पता लग गया, ये फ्लूइड आउंस में कितना वॉल्यूम है, कितना रिक्वायर्ड है, और आपको परसेंटेज भी पता चल गया. तो अभी हम फार्मूला लगाएंगे. इन दोनों में से आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हो. 35 ग्रेन्स इन 8 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 1%. ठीक है, ये भी सेम फार्मूला है. तो ये वाला फार्मूला सिंपल रहता है. 4.375 ग्रेन्स 4.375 ग्रेन्स इन 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 1% सोल्यूशन, जो भी हमने पिछले टॉपिक में किया था, पिछले एग्जाम्पल में किया था. तो अब हमें वॉल्यूम कितना चाहिए, 20 फ्लूइड आउंस. यहाँ से देखो 20 फ्लूइड आउंस चाहिए हमें. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4.375 मल्टीप्लाई बाय 20 इन 20 फ्लूइड आउंस. अब हमने सॉलिड क्वांटिटी भी बढ़ा दी और वॉल्यूम भी बढ़ा दिया. जितने टाइम्स हमने क्वांटिटी बढ़ाई है उतने ही टाइम्स हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया. तो परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आएगा, परसेंटेज सेम ही रहेगी 1%. 20 टाइम्स हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, 20 टाइम्स हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, परसेंटेज सेम ही रहेगी. ठीक है, तो इस लाइन में हमने क्या किया है, हमने कैलकुलेट किया है कि 20 फ्लूइड आउंस के लिए कितना सॉलिड चाहिए, ये क्या किया है अभी हमने. अब दूसरा इसमें क्या था कि हमें परसेंटेज भी चेंज कर दी. वी हैव टू चेंज द परसेंटेज आल्सो. 1/6% चाहिए हमें. तो हम क्या करेंगे, इस सारी की सारी क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमने क्या किया, सेकेंड लाइन में 4.375 मल्टीप्लाई बाई 20, ये यहाँ से आया था 20. उसके बाद 1/6 से मल्टीप्लाई किया इन 20 फ्लूइड आउंस. तो इट इज इक्वल टू 1/6% सोल्यूशन. तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 14.58 ग्रेन्स. 14.58 ग्रेन्स, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 15